Hello and welcome back, dear friends, at Lit eCity YouTube channel, the one-stop destination for English learning resources. दोस्तों हमारा जो आज का वीडियो है इट इज अबाउट द फेमस क्रिटिकल essay Pride and Literature, which is written by Lionel Trilling. In this video, we will discuss the major ideas, all the key important points Lionel Trilling presents in the essay. जो essay है, it is about, obviously title indicate कर रहा है, Sigmund Freud, who is known as the father of psychoanalysis, and the relationship between Freud's ideas and literature. तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ऐसे एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द एसेइस्ट लियोनेल ट्रिलिंग। 20th सेंचुरी के एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक एंड इंटेलेक्चुअल है। बेसिकली ही वाज अ प्रोफेसर एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड एक्चुअली अमेरिकन लिटरेरी ट्रेडिशन के as an essayist, as a contributor to the critical debates, he has a very high position. In fact, he is known for exploring the connections between literature, culture, and psychology. In तीनों, which are quite interrelated forms of human communication, इन तीनों के बारे में वो उनका जो इंटर रिलेशनशिप है, उनकी जो डीप रूट्स हैं, उनको वो एक्सप्लोर करते हैं। One of his most famous book, The Liberal Imagination, published in 1950, it is collection of his important essays. अगर हम बात करें प्रेजेंट एसे की, Freud and Literature, it is one of the most celebrated essays in the collection, in this particular book, The Liberal Imagination. और थोड़ा सा आउटलाइन में आपको बता देता हूं that divided into 4 parts is long essay. It deals with the mutual influence between psychoanalysis and literature. Mutual influence का मतलब क्या हो गया? How psychoanalysis theories, ideas, they impact a writer while writing a work, and how the written work, the literary tradition, history, it gives insight to a psychiatrist. Second point is Freud's literary inheritance from Romanticism. It is a very key idea of this essay, how Freud got many ideas from the romantic movement in literature. Not only just English romantic movement, he was basically a European thinker, he was a European intellectual. So European romantic tradition का Freud की thinking पर, mental makeup पर क्या प्रभाव पड़ा? The third one is limitation of psychoanalytic literary criticism. Sometimes some critics try to exert unwanted influence of psychoanalytic theories. तो ट्रिलिंग इस पर भी बात करते हैं that they have limited role in deciding the meaning, in getting the right interpretation of a work. And the last one is the value and dangers of applying Freudian concepts to art. It's not very easy, according to Trilling, to take any Freudian concept and apply without proper examination to any work. तो इन सारी चीजों पर बात करेगा ये essay. Let's start. जो पार्ट फर्स्ट है उसका हम शॉर्ट में समझ सकते हैं कि इट इज बेसिक इंट्रोडक्शन टू द मेन आइडियाज, Freudian psychology and its literary connection. Actually, Trilling begins this essay by pointing out कि Freudian जो psychology है, it offers a comprehensive and complex understanding of human mind. We know very well he is the father of psychology and psychoanalysis. और एक्चुअली में फ्राइड एक प्रेजेंट करता है एक बहुत ही साइंटिफिक, एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम जो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन माइंड वर्किंग है उसको प्रेजेंट करता है. एंड ट्रिलिंग सेज दैट इट इज सिमिलर टू द प्रोफाउंड इनसाइट्स फाउंड इन सेंचुरीज ऑफ लिटरेरी वर्क. When human beings begin to write literature, compose literature,
जो मेन लिटरेचर का एक क्वालिटी था वो ये था, इट आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन माइंड. सो बोथ psychoanalysis and or we can say psychology and literature, they have some common goals, some shared insights. And what is the difference? When we shift from reading literature, which is basically fictional, to academic psychology, which is basically a particular scientific stream, it means a shift from artistic perception, which required a different kind of sensibility. लिटरेचर को समझने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए एक टाइप का आर्टिस्टिक परसेप्शन चाहिए. एंड टू अंडरस्टैंड और टू यूज साइकोलॉजी इज टू मूव टू साइंटिफिक एनालिसिस. तो एक तरह से देखा जाए दोनों बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिक डोमेन्स हैं. वन रिक्वायर्स एस्थेटिक सेंस, अदर रिक्वायर्स रेशनल थिंकिंग. But according to Trilling, both fields study the same human nature. दोनों का जो ground of work है वो same है, that is human nature. Literature using creative expression, using imagination, and psychology using systematic methods. Simple words में कहें, two different routes, दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं, बट दे हैव कॉमन डेस्टिनेशन. दोनों का जो पर्पस है, दोनों की जो मंजिल है वो एक ही है. नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन साइकोएनालिटिक थियरी एंड लिटरेचर इज दस म्यूचुअल. क्यों? फ्राइडन कॉन्सेप्ट्स दे हैव सिग्निफिकेंटली शेप्ड मॉडर्न लिटरेचर. कहने का मतलब है बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं who have utilized Freudian concepts while composing their works. उसी के साथ ये अगर साइकोलॉजी का लिटरेचर के ऊपर इंपैक्ट है, लिटरेरी वर्क्स हैव इक्वली इन्फ्लुएंस्ड Freud and later psychologist theories. So interrelationship is mutual. Trilling mentions that there was a celebration, 70th birthday, Freud's 70th birthday celebration, and somebody called him, Freud को कहा, discoverer of the unconscious mind. It was kind of praise कि आपने सबसे पहले डिस्कवर करा है कि only surface पे ही mind नहीं, there is unconscious mind also. But Freud corrected them and asserted और स्वीकार करा that it's not me who have talked about the unconscious mind. Poets and philosophers have discovered it long before him. तो फ्राइड खुद ये कन्फेस करते हैं, स्वीकार करते हैं that literature and philosophy, they have also talked about the complex human mind, and his contribution was actually to create a scientific method to study it. उनसे पहले एक लिटरेरी वे के अंदर या फिलोसॉफिकल वे के अंदर, जो दोनों ही साइंटिफिक नहीं है, उसके अंदर इस चीज को तो बताया गया था. एंड फ्राइड एक्सेप्ट्स दैट हिज ओनली कंट्रीब्यूशन इज टू अंडरस्टैंड the mind, the working of mind in a proper scientific manner. Now, Trilling argues that अगर हम कोशिश करें ये समझने की कि if there is direct literary influence on Freud, Freud ने जब अपनी theories को formulate करा तो which were the direct influences on him? Whether he was greatly influenced by Nietzsche or philosopher like Schopenhauer, because the reason behind it, फ्राइड ने बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है ऐसा लगता है कि नीत्शे या शॉपेनहावर से इन्फ्लुएंस्ड है, बट एक्चुअली द फैक्ट इज दैट फ्राइड ने जब ये वर्क्स पढ़े नीत्शे या शॉपेनहावर के, he had already formed his core ideas. जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो फ्रेमवर्क था, वो ऑलरेडी वो क्या कर चुके थे, फॉर्मुलेट कर चुके थे. तो इसका मतलब फ्राइड की थियरीज को डेवलप करने का जो क्रेडिट है, इट इज नॉट ऑन सम स्पेसिफिक इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस, किसी एक वर्क पर, किसी एक राइटर पर नहीं है, बट the environment, the intellectual environment and cultural atmosphere of the time, which German scholars called Zeitgeist. Zeitgeist
Zeitgeist is a German term which means the spirit of the age, means एक जिस इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट में आप रहते हो, जो पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग को इंस्पायर करता है, एक पैराडाइम बनाता है कि जो फिलोसोफर्स हैं, जो थिंकर्स हैं, वो किस तरह से सोच रखे, ये उस पर्टिकुलर सोशियो कल्चरल एटमॉस्फेयर से भी इन्फ्लुएंस होता है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रिलिंग, फ्रायड का जो बेसिक ये कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके लिए भी वह कहीं ना कहीं उस समय का ज़ाइटगाइस्ट जो है वो रेस्पॉन्सिबल है, ना कि कोई पर्टिकुलर ऑथर ना। ये ज़ाइटगाइस्ट कैसे डेवलप हुआ, ये स्पिरिट ऑफ एज, या फिर हम जो बात कर रहे हैं उस समय का कल्चरल एटमॉस्फेयर की, तो स्टार्ट करते हैं ट्रिलिंग थोड़ा पीछे से। अकॉर्डिंग टू ट्रिलिंग, ये जो साइकोलॉजी है, ये जो एक स्ट्रीम ऑफ नॉलेज है, इट इज बेसिकली अ कल्मिनेशन, क्लाइमैक्स, ये एक हाई पॉइंट था 19th सेंचुरी में। रोमांटिसिज्म जो था वहां इसकी रूट्स है। नाउ इट सीम्स क्वाइट पैराडॉक्सिकल, कॉन्ट्राडिक्टरी। व्हाई? रोमांटिसिज्म एक लिटरेरी मूवमेंट था जो टोटली इरेशनैलिटी को फेवर करता नजर आता है, जबकि साइको एनालिसिस एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है जो रेशनैलिटी पे डिपेंड है। सो हाउ कैन अ लिटरेरी मूवमेंट लाइक रोमांटिसिज्म बिल्ड अपॉन और इन्फ्लुएंस अ साइंटिफिक मूवमेंट? और तो इस कारण ऐसा लगता है कि इट इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी, इट इज अ पैराडॉक्सिकल थियरी। But actually, this contradiction is not true. When we deeply look at the roots of the Romantic movement, the basic assumption of the Romantic thinkers, because Romanticism was deeply scientific, because it also was very keenly interested in the investigation of human consciousness and emotion. रोमांटिसिज्म भी जो बेसिकली हम कह सकते हैं, इट वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द फॉर्मेलिटीज और द आर्टिफिशियलिटीज ऑफ द 18th सेंचुरी लिटरेचर, द डेकोरम, द प्रॉप्राइटी। तो ये बेसिकली क्या था? इट आल्सो वांटेड टू स्टडी what lies beneath the surface. So it is similar, it has the similar desire to understand human psychology, human consciousness, emotions. So we can easily now assume how the roots of psychology lies in the theory of romanticism. Now basically to understand literary foundation of Freudian thought, Trilling traced the tradition back to one particular book. Denis Diderot, a French writer, philosopher, he wrote a very influential work, Rameau's Nephew, and it was very much admired by the 19th century thinkers like Goethe from Germany, Karl Marx from Germany, Hegel once again, and G.B. Shaw. So different writers appreciated the novel ideas presented in this book. Now what is this book? This book actually presents a dialogue between the French philosopher Diderot and his nephew, the famous music composer Jean-Philippe Rameau. Now Rameau is portrayed as a socially outcast and shameless character because of certain characteristics जो सोसाइटी के नॉर्म्स है उनसे अंगेंस्ट जाकर, बिकॉज ही बिहेव्स और ही हैज अ पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल जो उस समय के कल्चरल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं थी। तो रामियो इज सोशली आउटकास्ट, नोबडी वांट्स टू बी सीन इन हिज कंपनी। Diderot, on the other hand, represent the honest consciousness or reason which is behaving according to the accepted social norms. जैसा समाज चाहता है वैसे बिहेव करना। And Rameau challenges social norms, and that's why he represent disintegrated, that is honest according to society, Diderot's, और Rameau डिसइंटीग्रेटेड कॉन्शियसनेस हो गई, वो जो सोसाइटी के एक्सेप्टेड नॉर्म से परे जाकर बिहेव करती है। नाउ this contrast is actually, we can say, a precedent. It anticipates Freud's concept of id. Id is a part of consciousness.
which is the pleasure seeking part of the mind and impulsive desire. According to Freud, हम सबके अंदर ये id जो होता है ये hidden होता है, and the ego is the rational part जो इस id को कंट्रोल में रखता है so that we can be accepted by the society. जब भी एक सोसाइटी के अंदर हम फील करते हैं स्ट्रेस, इट इज बिकॉज जो इड है वो अंदर से इंपल्सिव, वो डिजायर अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, लेकिन जो ईगो है वो उसको कंट्रोल करता है बिकॉज वी वांट टू बी सोशली एक्सेप्टेड. तो ये जो टेंशन है लगातार, जिनका ईगो स्ट्रांग होता है वो सोशली एक्सेप्टेबल होते हैं, और जिनका इड ज्यादा स्ट्रांग होता है वो आउटकास्ट हो जाते हैं. क्वाइट सिमिलर जो चीज डिड्रोट और रैम्यू के अंदर पाई जा रही है. डिड्रोट वर्क्स कंटेन अ पर्टिकुलरली स्ट्राइकिंग पैसेज दैट एंटिसिपेट्स फ्राइडन थियरीज. डिड्रोट ने भी एक पैसेज में लिखा है, और वही चीज कहीं बाद में फ्राइड ने भी एक्सेप्ट करी है कि अगर एक चाइल्ड को सोशली अपब्रिंगिंग ना मिले, मींस सोसाइटी जो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स, जो अनरिटन रूल्स होते हैं उनको अगर हटा दें, अगर एक बच्चे को लेफ्ट टू डेवलप विदाउट सिविलाइजेशंस कंस्ट्रेंट, अगर उसे सोसाइटी और सोसाइटी के जो मीन्स ऑफ सोशल एजुकेशन होते हैं, लाइक फैमिली, लाइक मैरिज, लाइक एजुकेशन, लाइक पुलिस, उनसे परे रखा जाए, the child might combine adult level passion, जैसे जैसे ग्रू होगा तो adult level passion तो आएंगे ही, and childish reasoning. Now what happens in society? हमारे अगर पैशन ग्रो होते हैं तो उसी के साथ हमारा जो रीजनिंग है वो उन पैशंस को कंट्रोल करना सिखाता है. अगर वो सेक्टर हटा दिया जाए तो पैशन और चाइल्डिश रीजनिंग होगी, एंड द चाइल्ड it might lead to extreme actions like harming his father, desiring his mother. तो यही चीज फ्राइड ने बताई थी कि it is actually society which creates which shapes our ego, which tells us किस तरह से हमें id को सप्रेस रखना है. Now the progression, this was the earliest route. डिड्रोट का जो वर्क था, डिड्रोट के इस वर्क के बाद रैम्यू जो सेल्फ रिविलेशन करता है, अपने कन्फेस करता है दैट आई डोंट बिलीव इन द कंस्ट्रेंट. यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं, रूसो अनदर जर्मन फिलोसोफर की तरफ जाते हैं, एंड ही प्रेजेंटेड फ्रेंच राइटर की तरफ जाते हैं, ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट्स ऑफ हिज चाइल्डहुड. ये फर्स्ट टाइम था जब एक फिलोसोफर, एक राइटर अपने चाइल्डहुड को ऑटोबायोग्राफिकल वे के अंदर प्रेजेंट करता है, बहुत ऑनेस्टी के साथ. इट इज अ नेचुरल डेवलपमेंट इन लिटरेचर, क्योंकि दिस शोज कि राइटर्स आर इंक्रीजिंगली बिगिन टू एक्सप्लोर हिडन एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर. जो चाइल्डहुड के अंदर हम एक्चुअली में एक्सपीरियंस करते हैं, दे बिकम द कोर ऑफ अवर ह्यूमन कॉन्शियसनेस, अवर कॉन्शियसनेस. नाउ रूसो वाज वन ऑफ द फर्स्ट राइटर्स हु ट्राइड टू ऑनेस्टली डेल्व डीप, अंदर जाते एंड प्रेजेंट्स द चाइल्डहुड मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस. तो अकॉर्डिंग टू ट्रिलिंग ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है जब हम डिड्रोट के वर्क से रूसो की ऑटोबायोग्राफी पर आते हैं. नाउ दिस फोकस ऑन द हिडन थिंग. हिडन मींस जो ऊपर सोशली विजिबल नहीं है, जो हमारे मन के अंदर या हम सबकॉन्शियसनेस में कह सकते हैं, it gradually become a dominant theme, and it shows that mind is far more complex than what we earlier thought. हम जैसा मानते थे माइंड एक सिंपल जो एक्सप्रेस हो रहा है, दिख रहा है, वो नहीं है. इट इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड kind of phenomena. Now Trilling gives further examples of writers like William Blake. He saw, Blake के जो विजन्स थे, जो मिस्टिसिज्म था, तो ब्लेक तो ये मानते थे कि ये जो हिडन एलिमेंट्स हैं, दे आर द पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन. On the other hand, writers like Wordsworth and Edmund Burke, they viewed them as source of unconscious wisdom which guide the human being, और जो एक्चुअली में कनेक्ट करते हैं ह्यूमन बींग्स को नेचर के साथ, या फिर जो इनहेरेंट हमारी नेचर है और जो एक्सटर्नल नेचर है, उनके बीच का ये लिंक है.
तो ये पता चलता है कि जैसे जैसे हम 19th सेंचुरी के अंदर एंटर हो रहे हैं 18th सेंचुरी से, ये एक्सप्लोरेशन ऑफ हिडन थॉट बढ़ता जा रहा है. नाउ नेक्स्ट, this trend highlights a growing interest in personal history and the unconsciousness. Society as an external drawing room से हम basically कहां बढ़ रहे हैं? Our personal history के अंदर, which is quite similar to Freud's focus on early experience shaping behavior. फ्राइड भी अपनी वर्क्स के अंदर अपने कॉन्सेप्ट्स में प्रेजेंट करता है जो हमारा पर्सनल हिस्ट्री है, विच इज बेरिड डीप डाउन, जिसको हमने दबा दिया है, वो एक्चुअली में रेस्पॉन्सिबल है हमारे एडल्ट बिहेवियर के लिए. पोइट्स आल्सो डिस्कवर्ड, जो 19th सेंचुरी के रोमांटिक पोइट्स थे, डिस्कवर्ड creating poetry through this newly discovered mental faculty. It brought unexpected challenges. It is not just descriptive poetry. ये केवल ये शो नहीं करती है how beautiful the nature is, how a landscape is, the heroes, their heroism. No, it brought something new. कि कैसे आप खुद को एक्सप्लोर करो, द टेंशन बिटवीन द इनसाइड एंड द आउटसाइड, उसको एक्सप्लोर करने का चांस देता है ये. And then writers like poets like Wordsworth, Coleridge and Matthew Arnold, they faced conflicts between their creative faculties, which forces them to look beyond the social accepted norms and other mental forces जो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जैसे रीजन जो उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है. इट इज ऑलवेज, सोसाइटी हमेशा क्या करती है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक लिमिटेड रेंज के अंदर रिलीज करना अलाउ करती है. नाउ अ डीपली इनग्रेन्ड राइटर, जिसकी बहुत गहरी इमेजिनेशन होती है, दैट राइटर ऑलवेज फाइंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ इनटू दिस काइंड ऑफ टेंशन, दिस काइंड ऑफ टाइट रोप, जहां पर दोनों फोर्सेस एक दूसरे के साथ क्रॉस करती हैं. This conflict affected not only the imaginative thinkers like poets, but also educated Europeans, because they begin to recognize excessive rationality. When you do everything according to the reason or dictate of the society, it may harm emotional and creative life. ये उससे पहले कभी नहीं सोचा गया था. एंड जॉन स्टुअर्ट मिल, द लिबरल थिंकर, द इंग्लिश radical thinker, he serves as a classical example of this problem. How? Because he was an intellectual who suffered, जो social norms को follow करने के कारण, जिन्होंने अपने creative और emotional expression को control करा, he suffered from the emotional consequences of over rationalization. Over dependency on reason caused a great emotional suffering to him. Now 17th century onward, लिटरेचर का इंटरेस्ट वापिस से दिखने लग गया था इन द मेंटल लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन, विमेन एंड पीजेंट्स, सेवेजेस. ये चार ऐसी कैटेगरीज थी जो मार्जिन पर रहती थी, और इस कारण राइटर्स और थिंकर दे बिगिन टू बिलीव दैट दे वर लेस कंस्ट्रेन्ड बाय सोशल कन्वेंशंस. उनको सोशल कन्वेंशंस का इतना डर, इतनी चिंता नहीं थी देन दोज ऑफ एजुकेटेड एडल्ट्स who basically were governed by the voice of reason, जिनको voice of reason कंट्रोल करती थी. और इस कारण ये जो चार थे, चिल्ड्रन, विमेन, पीजेंट, सेवेजेस, दे बिकम वैल्यूएबल सब्जेक्ट्स फॉर साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन. ये हम वर्ड्सवर्थ की, कॉलेज की पोइट्री में देख सकते हैं किस तरह से दे टॉक अबाउट वन ऑफ दीज फोर कैटेगरीज. और वर्ड्सवर्थ का फेमस स्टेटमेंट, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, दे ऑल शो किस तरह से हमारा इंटरेस्ट जो है बढ़ता जा रहा था. फर्दर the development of Bildungsroman, which is coming of age novel of a character, which was basically originated by the work of German writer Goethe's Wilhelm Meister. It created a revolution, एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट लेकर आया मॉरल अंडरस्टैंडिंग में, बिकॉज द शिफ्ट ऑफ द एक्शन इज फ्रॉम द एक्सटर्नल टू द इंटरनल.
and it established a strong connection between the author who is writing, the protagonist and the reader. तीनों के बीच का जो कनेक्शन था, which is the mental connection, the emotional connection, वो बिल्डिंग्स रोमान के द्वारा डेवलप होने लगा. ये जो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल था, it first suggested that we can't judge a person based on single moment in their life because it is unfair, because we have to understand the formative past and potential future development, which is once again psychoanalysis काइंड ऑफ थिंग. बगैर उसके उस पास्ट को समझे जिसके अंदर जर्म्स हैं, रूट्स हैं, उसके एडल्टहुड बिहेवियर की और उनके पोटेंशियल फ्यूचर एक्सटेंशन को समझे, एक पर्सन को एक इवेंट पर जज करना इम्पॉसिबल है. ये सारी चीजें लिटरेचर के अंदर डेवलप होने लगी. नाउ शैली, हेनरिक इब्सन, Norwegian writer, George Sand, French writer, Arthur Schopenhauer, they explored the sexual origin of art. इन सभी राइटर्स ने एक्सप्लोर करा किस तरह से जो अर्लियर सेक्सुअल इंपल्सेस होती हैं वो किस तरह से डेवलप करती हैं आर्ट के अंदर. उन्होंने उस चीज को एक्सप्लोर करा. फर्दर, another French writer, Stendhal's observation about sexual maladjustment, person who suffer from some kind of sexual abuses and erotic feelings, they appear remarkable familiar to later Freudian analysis. एक्चुअली में ट्रिलिंग क्या कर रहे हैं, एक पूरी हिस्ट्री बता रहा है किस तरह से फ्रायड ने 20th सेंचुरी में जब अपने आइडियाज प्रेजेंट करे उससे कहीं पहले ये सिमिलर आइडियाज वर देयर इन द एयर अमंग मैनी लिटरेरी वर्क्स. एंड नाउ ही सेज द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड not as one single entity but as divisible, जहां पर एक पार्ट observe and criticize another, it gradually became prominent कि माइंड कोई सिंगल एंटाइटी नहीं है, माइंड भी डिवाइडेड है फेजेस के अंदर, स्फीयर्स के अंदर. दिस आइडिया इज क्वाइट सिमिलर, akin closely similar to Dostoevsky's brilliant portrayals of conflicted and ambivalent emotions. एक ही पर्सन अपने एक्शन को, क्राइम एंड पनिशमेंट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. एक पर्सन अपने एक्शन को जज भी कर रहा है, क्रिटिसाइज भी कर रहा है, विच शोज दैट द पर्सन इज torn between the rational and the impulsive. Now he says, Trilling further says that actually another writer, novelist, introduced प्रीऑक्यूपेशन विद डेथ विश. देखिए फ्रायड के जो जितने भी आइडियाज हैं, चाइल्डहुड, फिर उसके बाद सेक्सुअल इनिशिएशन, फिर उसके बाद बिल्डिंग रोमांस से रिलेटेड या फिर डेवलपमेंट ऑफ द साइकी, और अब उसके बाद डेथ विश, ये सारे ट्रिलिंग शो कर रहा है कि अर्लियर राइटर्स ने, जैसे नॉवेलिस्ट ने जो प्रीऑक्यूपेशन विद डेथ विश, ही लिंक्ड इट विद द स्लीप एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इंपल्सेस. एंड ये जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इंपल्सेस है ये वापस से हम देखते हैं, इससे एक और स्कूल, एक और मूवमेंट जिसको हम गॉथिक लिटरेचर कहते हैं, लिटरेरी इंटरेस्ट इन हॉरर एंड द मैकेबर, जो पाया जाता है इन द वर्क्स ऑफ Shelley and Edgar Allan Poe. Once again, they are works composed much before Freudian's theories or publication of his work. And literature once again showed growing interest in dreams, which is the main working area of Freud. Nature of metaphorical language, how we create metaphors, how we express ideas through images. This interest peaked with Arthur Rimbaud and later symbolist poets, जहां पर मेटाफर्स जो थे वो कॉन्क्रीट और क्लियर होने की बजाय लेस कम्युनिकेटिव हो गए. इट बिकेम डिफिकल्ट, जस्ट लाइक हमारी स्लीप के अंदर जो ड्रीम्स होते हैं, दे लैक एनी रेशनल लिंकिंग विद अवर लिविंग एक्सपीरियंस. हमारे ड्रीम जो होते हैं वो किसी भी तरह से इजीली एक्सप्लिकेबल, उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. सिंबॉलिस्ट राइटर्स भी ऐसे इमेजेस और मेटाफर्स को यूज करने लग गए जिनको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल था. नाउ फर्दर ही सेज दैट these psychological elements already existed in cultural zeitgeist
फ्रॉम विच फ्राइड हिमसेल्फ एमर्ज। उसी माहौल के अंदर ये वर्क्स भी थे, उसी माहौल में फ्राइड भी डेवलप हो रहे थे। इट इज डिफिकल्ट किसने किससे बोरो करा, क्या फ्राइड का वास्तव में लिटरेरी इन्फ्लुएंस था भी, या फिर दीज वर्क्स वर इंडिपेंडेंटली मेकिंग देमसेल्फ अपीयर। ये चीज एक क्वेश्चन ट्रिलिंग उठाते हैं कि कितना हम माने इंपैक्ट था। एक्चुअली ही सेज दैट writer like Marcel Proust, French writer, and T.S. Eliot, they use techniques which resembles psychoanalysis, and they were later than Freud, exploring sleep or sexual deviation, obsessive interest in metaphor, but they were not directly influenced by Freud. तो ये हम नहीं मान सकते कि फ्राइड के जो आइडियाज हैं दे इन्फ्लुएंस्ड हिज कंटेम्परेरीज और जस्ट जो उनके बाद के, बट स्टिल फ्राइड का इन्फ्लुएंस जो लिटरेचर पर है इनॉर्मस और वाइड स्प्रेड है। इस बात पर अब ट्रिलिंग आते हैं पूरा बैकग्राउंड देने के बाद। ट्रिलिंग सेज दैट द अर्ली एप्लीकेशन ऑफ फ्राइडन थियरी टू लिटरेरी बायोग्राफी सेंसेशनल तो था जब एक बायोग्राफी लिखी गई किसी राइटर की और फ्राइडियन थियरीज को अप्लाई किया गया। एवरीबॉडी वाज एस्टाउंडेड बाय दिस न्यू अप्रोच, बट इट वाज नॉट डीप, इट वाज नॉट एक्यूरेट। These early biographers had the analytical tools. फ्राइड ने उनको टूल्स तो दे दिए थे, लेकिन they didn't have the comprehensive understanding of their subject. तो एक खुद ट्रिलिंग यूज करता है एक एनालॉजी, और वी कैन से वो एक अल्यूजन यूज करता है। जस्ट लाइक इन हैमलेट, गिल्डनस्टर्न एक माइनर जो करेक्टर है, उसके पास इंफॉर्मेशन तो थी, बट Guildenstern was not able to interpret it meaningfully and the result was comic. Similarly, जो लिटरेरी बायोग्राफर्स थे उनके पास टूल्स तो आ गए, फ्राइड ने उनको कॉन्सेप्ट्स तो दे दिए, बट दे फेल टू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई दीज टूल्स ऑन देयर सब्जेक्ट जिसकी वो बायोग्राफी लिख रहे हैं, उसके अंदर उनकी अंडरस्टैंडिंग लैक कर रही थी। सो साइकोलॉजिकल बिकेम बेटर अंडरस्टूड, जितना वो और क्लियर होती गई, लिटरेरी क्रिटिसिज्म आल्सो गेन सिग्निफिकेंट वैल्यू फ्रॉम फ्राइडियन इनसाइट एंड क्रिटिक्स बिगिन टू रीड लिटरेरी वर्क्स। न केवल लिखने में बल्कि जो लिटरेरी वर्क्स ऑलरेडी लिखे हुए थे उनको इंटरप्रेट करने में, उनको समझने में, जो उनका हिडन, लेटेंट और एम्बिगुअस मीनिंग था उसको डेसाइफर करने के लिए, उसको समझने के लिए वो बेटर इक्विप्ड हो गए। मैनी क्रिएटिव राइटर्स यूटिलाइज फ्राइडियन एजम्पशंस, लेकिन देयर वर ओनली फ्यू हु मेड सीरियस यूज ऑफ फ्राइडियन कॉन्सेप्ट। पहले बात करी क्रिटिक्स की जिन्होंने फ्राइडियन कॉन्सेप्ट को यूज करा, अब बात करें उन राइटर्स की जिन्होंने फ्राइडियन कॉन्सेप्ट का यूज करा वर्क्स के अंदर। और जब वो फ्राइडियन आइडिया से इंस्पायर होकर फ्राइड को अपने वर्क्स भेजते, मैन्युस्क्रिप्ट्स भेजते, फ्राइड हिमसेल्फ हैड वेरी लिमिटेड एक्सपेक्टेशन। ही वाज सिनिकल दैट they had the potential to use his ideas, who claimed to have learned from his theories. Some examples like the surrealist 20th century group, they used Freudian theories to provide scientific justification of exploring unconscious creativity. Surrealist जो poets थे वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते थे सबकॉन्शियसनेस का, और टू बेसिकली गिव वैलिडिटी टू देयर वर्क्स उन्होंने फ्राइडियन कॉन्सेप्ट को यूज करा। Kafka explored guilt and dreams. Once again, he took ideas from Freud and was successful. Thomas Mann, he engaged with Freudian anthropology, and James Joyce, he deeply incorporated a state of consciousness and family themes. तो ये सारे जो राइटर्स थे सक्सेसफुल थे फ्राइडियन कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज करने में अपने क्रिएटिव वर्क्स में, बट मोस्ट ऑफ अदर राइटर्स दे वर वी कैन से नॉट कॉम्पिटेंट एनफ, उनके अंदर ये इतना पोटेंशियल नहीं था कि वो उसको यूज कर सके। तो ये था फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर
ट्रिलिंग प्रेजेंट करते हैं। पहले तो एक ब्रीफ हिस्ट्री, जिस एनवायरनमेंट के अंदर लिटरेचर के अंदर भी साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज डेवलप हुई और फ्राइड उनसे इन्फ्लुएंस हुआ, और साथ में फिर ब्रीफली बताते हैं किस तरह से जस्ट when Freud was making his views public, तो उससे लिटरेचर पर कैसे फर्क पड़ा। अब हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट की। अब बात करते हैं हम सेकेंड पार्ट, जिसके अंदर वी विल डिस्कस अबाउट फ्राइड्स रेशनलिस्ट फाउंडेशन एंड हिज व्यूज ऑन आर्ट। देखिए, फर्स्ट पार्ट के स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि एक्चुअली बोथ आर म्यूचुअल, लिटरेचर एंड साइको एनालिसिस, और ये भी देखा था बोथ शेयर्ड सर्टेन कॉमन ग्राउंड्स, दोनों के कुछ ग्राउंड्स कॉमन है, दोनों ह्यूमन माइंड को समझने की, इंटरप्रेट और एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। बट स्टिल फ्राइड्स आइडियाज बहुत सारे एंटी रेशनल इमोशनल एस्पेक्ट्स जो रोमांटिक लिटरेचर के हैं उनसे कनेक्ट करते नजर आते हैं। पर जैसा फर्स्ट पार्ट में भी हमने देखा था, फ्राइड का जो सिस्टम है इट इज बेसिकली साइंटिफिक, रेशनलिस्टिक। वो कोई रोमांटिक इमेजिनेशन के सपोर्टर या उसको फॉलो नहीं करते हैं। एक्चुअली थॉमस मान, द फेमस जर्मन नॉवेलिस्ट, he was, according to Lionel Trilling, he was wrong, he made an error। जब उन्होंने ये सजेस्ट करा कि लिटरेचर को, या फिर हम देखें थिंकिंग को, दो पार्ट में बांटा जाता है ग्रीक फिलॉसफी में। एक तरफ है अपोलोनियन, अपोलोनियन अपोलो से निकल कर आया वर्ड है जिसका मतलब है द लॉजिकल एंड साइंटिफिक एस्पेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू थॉमस मान, जो फ्राइड के और मेथड के अंदर अपोलोनियन साइड है, या उसका जो लॉजिकल और साइंटिफिक एस्पेक्ट है वो सेकेंडरी है, मतलब वो इतना वैल्यूएबल नहीं है, और उसकी बजाय मान के अकॉर्डिंग फ्राइड जो है वो एक्चुअली में नाइट साइड या फिर डार्क एंड इरेशनल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को ज्यादा फोकस में रखते हैं। ये मिस्टेक करी थी समझने में थॉमस मान ने, अकॉर्डिंग टू लियोनेल ट्रिलिंग। एक्चुअली फ्राइड ने यह भी क्लेम करा था कि गेटे वाज द पर्सन हु इंस्पायर्ड हिम टुवर्ड्स मेडिकल साइंस, गेटे द फेमस जर्मन नॉवेलिस्ट। बट एक्चुअली फ्राइड was not inspired by Goethe's treatment of the supernatural। गेटे के वर्क के अंदर जो सुपरनेचुरल थीम्स पाई जाती है वो नहीं था। He was inspired, he was influenced by Goethe's famous essay on nature, जिसने न केवल फ्राइड, बहुत सारे 19th सेंचुरी साइंटिस्ट्स को इंस्पायर करा था, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल वर्ल्ड, उसके अंदर जो सिस्टमेटिक अप्रोच थी वो बहुत अपीलिंग थी। Which makes it clear कि फ्राइड का जो गोल है वो है ईगो, जो बेसिकली कंट्रोलिंग रेशनलिस्टिक फोर्स ऑफ ह्यूमन माइंड है उसको स्ट्रेंथन करना, और सुपर ईगो जो सोशल कोड्स और मोड्स हैं उनसे इंडिपेंडेंट करना, और इड का ऑर्गेनाइजेशन करना ताकि ये चेक्स एंड बाउंड्स के अंदर रहे। तो इसका मतलब फ्राइडियन साइकोलॉजी के अंदर देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन साइकी। फर्स्ट द ईगो, जो रिप्रेजेंट करता है द रेशनल पार्ट ऑफ माइंड, जो हमें इनेबल करता है एक लॉजिकल और एक रेशनल वे में रिएक्ट करने की, बिहेव करने की। द सुपर ईगो, जो सोशल एक्सपेक्टेशंस या मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं जो जाइटगाइस्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, जो शेप करते हैं हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को। और द इड, जो हमारा टोटल इंपल्सिव इरेशनल प्लेजर सीकिंग पार्ट होता है, जिसको थोड़ा कंट्रोल में रखना जरूरी होता है। और इन तीनों के बीच के इंटर रिलेशन को फ्राइड ने बहुत ब्यूटीफुली कॉइन करा था, वेयर इट वाज देयर शैल ईगो बी। मतलब ईगो क्या करेगा, कंट्रोल करने की कोशिश करेगा हमारी वाइल्ड, हमारी अनकंट्रोल्ड, हमारी रिप्रेस्ड, हमारे जो भी इरेशनल डिजायर्स हैं। यही उनका मिशन था, क्योंकि फ्राइड व्यूड साइको एनालिसिस एज अ फॉर्म ऑफ टूल जो हेल्प करता है इन ब्रिंगिंग लाइट, ऑर्डर, रेशनल कंट्रोल टू डार्क केओटिक फोर्सेस ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड। हमारा जो माइंड का अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस पार्ट है, जिसके अंदर हिडन, जिसके अंदर सप्रेस
डिजायर्स होती हैं जो आदमी को फोर्स करती हैं कि वो सोशल ऑर्डर को इंटरप्ट करे, उसको कंट्रोल में रखना। इस कारण वी कैन नॉट एक्सेप्ट दैट फ्रायड would have agreed, Freud would have accepted the role Thomas Mann assigned him, because Mann thought, Thomas Mann का ऐसा मानना था, Freud also validate myths, irrationality and dark psychological process. No, in contrast, Freud's role was to understand and control the myths, the irrationality, the dark psychological desires, and उनको पहले समझना and then try to control them through scientific analysis. फ्राइड का जो रैशनलिज्म है वो उन्हें अलाइन करता है जितने भी एनलाइटनमेंट पीरियड के आइडियल्स थे, और ये एनलाइटनमेंट था रैशनैलिटी के बारे में 18th सेंचुरी का आइडियल है ये, जिसके अंदर जितने भी डार्क एजेस, मिडल एजेस से रिलेटेड मिथ, सुपरस्टिशन, रिलीजियस बिलीफ थे, उनको ट्रुथ के सोर्स से हटाते हुए रीजन को बताया गया। 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। पहला, मटेरियलिज्म मींस द आइडिया दैट एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन थ्रू फिजिकल एंड मटेरियल कॉजेज। इस भौतिक संसार को मटेरियलिस्टिक प्रोसेस के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। सिंपल डिटर्मिनिज्म, ऑल मेंटल इवेंट्स हैव डिस्कवरेबल एंड साइंटिफिक कॉजेज। हम कोई भी जो रेस्पॉन्स देते हैं, रिएक्शन देते हैं, उसके पीछे कुछ ऐसे डिस्कवरेबल जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसे कॉजेज होते हैं। एंड लिमिटेड एपिस्टेमोलॉजी, लिमिटेड एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है कि बिलीफ कि नॉलेज कैन बी रिलायबली ऑब्टेन्ड ओनली थ्रू साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। उसके अलावा चाहे मिथ हो, चाहे इंट्यूशन हो, इनका रोल बहुत लिमिटेड होता है किसी नॉलेज को गेन करने के लिए। तो जो फ्राइड की ये रेशनल और साइंटिफिक अप्रोच थी, इससे बहुत सारी उनको एडवांटेज मिली, स्ट्रेंथ मिली। फॉर एग्जांपल, उनका डेडिकेशन टू हिज पॉजिटिव थेरेप्यूटिक गोल्स। थेरेप्यूटिक गोल्स होते हैं जिसके थ्रू वो अपने पेशेंट्स की जो सफर कर रहे थे किसी भी प्रकार के न्यूरोसिस से, उनको रिलीव करने से, स्ट्रेस से, पेन से, डिसऑर्डर से, उसके अंदर उनको हेल्प मिली। और उन्होंने फोकस अपना किस पर करा कि वो किस तरह से प्रैक्टिकल मेथड्स को डेवलप करें जो पेशेंट्स की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उनकी हेल्प करें। ये उनका साइंटिफिक मेथड जो था, वो मेथड इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। बट एट द सेम टाइम फ्राइड का ये जो स्ट्रिक्ट रेशनलिज्म था, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुई। क्योंकि देखिए, फ्राइड वाज नॉट डीलिंग विद समथिंग टोटली ऑब्जेक्टिव, वो ह्यूमन साइकी से डील कर रहे थे, विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ही क्लेम्ड, फ्राइड क्योंकि एक साइंटिस्ट की तरह सोचते थे, तो उनका क्लेम था कि उनकी जो थियरीज हैं दे परफेक्टली मैच एक्सटर्नल रियलिटी, क्योंकि उनको लगता था लाइक अदर एक्सटर्नल रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, लाइक नेचर, मोस्ट ऑफ द नेचर, जो उनका ह्यूमन साइकोलॉजी का एनालिसिस है वो भी एक्सटर्नल रियलिटी है। तो उनकी जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ बताते हैं, उनके अंदर कुछ भी हिडन, कुछ भी वेग या कुछ भी सब्जेक्टिव नहीं है। जो उनकी अर्ली थियरीज थी, लेटर ही एक्चुअली रिवाइज देम, और बाद वाले साइको एनालिस्ट, साइकाइट्रिस्ट ने भी उनको रिवाइज करा। ही ओवर सिंप्लीफाइड रियलिटी, वो मानकर चले कि कुछ जो फिक्स फार्मूला है उसके द्वारा ह्यूमन साइकोलॉजी को कैप्चर किया जा सकता है, बट इट prevented him from recognizing the more complex aspects of human experience. जो human experience है, it is not a very simple phenomena to be deciphered by some particular tools. ये जो उनके सिंपलिस्टिक व्यूज थे, इसकी वजह से उनके सामने चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आई जो फ्राइड की इनसाइट्स को यूज किया करते थे, स्पेशली उन लोगों को जो फ्राइड की थियरीज के हिसाब से कोशिश करा करते थे आर्ट को जज करने की, आर्ट को समझने की। बिकॉज फ्राइड, देखिए,
बेसिकली ही एडमायर्ड आर्ट्स इमोशनल इंसाइट. इट इज ट्रू, उनको ये पता था कि आर्ट गिव्स ट्रू प्लेजर. एंड ही ऑल्सो अप्रिशिएटेड, हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखा, हाउ राइटर्स अंडरस्टूड द रोल ऑफ हिडन अनकॉन्शियस मोटिव्स, जो जनरली आर्टिस्ट्स या राइटर्स के अलावा जिनका जो बहुत कम पकड़ में आते हैं. साइको एनालिसिस ने तो ये प्रोसेस लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में स्टार्ट करी, लेकिन राइटर्स ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करने में बहुत पहले से काम कर रहे थे. बट एट द सेम टाइम इस आर्ट के इस पर्टिकुलर पॉजिटिव इफेक्ट के बावजूद Freud viewed art with certain degree of contempt because he treated art as substitute gratification. Gratification is some sort of satisfaction, एक प्रकार का संतुष्टि या आनंद मिलना. बट सब्सटीट्यूट का मीन्स हो गया इट इज अ वे ऑफ फुलफिलिंग डिजायर्स दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन रियलिटी. मीन्स फैंटेसी का टाइप का. मान लो आप अपने रियल लाइफ में किसी चीज को एंजॉय या किसी चीज को गेन नहीं कर पाते हो, आप आर्ट के थ्रू या लिटरेचर के थ्रू फैंटेसाइज करके वो सब्स्टिट्यूट ग्रेटिफिकेशन अचीव करते हो. एंड दैट इज व्हाई आर्ट इज जस्ट एन इल्यूजन विच इज कंप्लीटली डिटैच, कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम ट्रुथ एंड रियलिटी. हाँ, इंपॉर्टेंट बात वो ये कंसिडर करते हैं, unlike most illusions that are harmful, art is almost always harmless and beneficent. तो एक तरह से फ्रायड illusion भी मानते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि art is because it is harmless, तो that is why it is beneficial. तो देखिए, अभी हमें और ये समझने के लिए कि फ्रायड आर्ट को कैसे ट्रीट करते थे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ अ साइकोएनालिटिक थेरेपी फंक्शंस. एक एग्जांपल से लियोनार्ड ट्रिलिंग हमें समझाते हैं दैट सपोज देयर इज अ पेशेंट हु इज लुकिंग फॉर अ ट्रीटमेंट, जिसको इलाज की जरूरत है फॉर इरेशनल फियर. फोबिया है उसको ऑफ वॉकिंग इन स्ट्रीट, कि वो गली में चलेगा तो कुछ उस पर अटैक या हो जाएगा. Now, patient actually know, intellectually know that there is no external threat. Actually कोई गली में threat नहीं है, लेकिन physician understand that real cause जो है वो street में या external danger में नहीं है, patient के unconscious psychological conflict के अंदर है, which may be caused by many factors. उसकी कोई childhood trauma है, कोई और चीज है जिसकी वजह से. तो साइकाइट्रिस्ट की जो थेरेपी है, इट एम्स टू ग्रेजुअली अनकवर द कॉज. क्या वो इंटरनल साइकोलॉजिकल रीजन है जिसकी वजह से ये फियर जनरेट हुआ है. देन थेरेप्यूटिक प्रैक्टिस के अंदर फ्रायड ये मान के चलता है कि इस तरह से हम कह सकते हैं दो पोलर अपोजिट टर्म्स हैं. रियलिटी जो ऑनरिफिक, मतलब विच इज टर्म ऑफ रेस्पेक्ट, positive term which actually exists and which must be dealt with practically. और दूसरी तरफ illusion जो pejorative, derogatory या एक टाइप की insulting negative term है, वो responses जो actually exist ही नहीं करते, जिसमें fantasies, dream and artistic creation. तो इस तरह से फ्रायड artistic creation को कौन से पोल पर सिचुएट करता है? इल्यूजन के पोल पर करता है. आगे वो बोलते हैं कि ये डिस्टिंक्शन जो है ये पेशेंट्स को हेल्प करती है डिस्टिंग्विश करने में कि प्रैक्टिकली, मतलब जो रियलिटी है जिससे वो एस्केप नहीं कर सकते, जिसको उनको फेस करना ही पड़ेगा, और वो इल्यूजन्स जो केवल उनकी इमेजिनेशन में है, जिसको वो विद प्रैक्टिस एंड विद थेरेपी रिमूव कर सकते हैं. इस तरह से क्लासिफिकेशन करके थेरेपी हेल्प करती है पेशेंट को ये समझाने के अंदर. नाउ फ्रायड एक्नॉलेज्ड कि ह्यूमन माइंड जो है वो रियलिटी को एक्टिवली क्रिएट करता है अपनी पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग से. मतलब माइंड पर्टिकुलर इवेंट्स को सेलेक्ट करता है, एक्सपीरियंसेस को सेलेक्ट करता है, अपने तरीके से उनका इंटरप्रिटेशन करता है, इवैल्यूएशन करता है, और इस कारण जो रियलिटी है वो कोई एब्सोल्यूट नहीं है. इट इज फ्लेक्सिबल
and constructed and rather than simply discover. Reality is not something कि जो already exist करती है और उसको discover कर लिया, rather than it is not given, it is constructed by the active mind of a human being according to many factors जो internal और external दोनों होते हैं. लेकिन थेरेप्यूटिक प्रैक्टिस के अंदर फ्राइड इसका अपोजिट, अभी हमने देखा रियलिटी और इल्यूजन के अंदर फ्राइड रियलिटी को कैसे ट्रीट करते हैं कि वो एक्सटर्नल है, वो फिक्स है, अनचेंजेबल है, गिवन है, रादर देन टेकन और कंस्ट्रक्टेड. तो क्या हो गया, एक तरफ फ्राइड ये मानते हैं कि माइंड अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करता है, दूसरी तरफ वो ये मानते हैं कि रियलिटी जो है वो एक्सटर्नल है और गिवन है. तो देयर इज a significant philosophical contradiction in this particular point. Now the paradoxically और भी important, जिस social reality को फ्राइड अपने पेशेंट्स को समझाना चाहते हैं कि दे हैव टू फेस इट, दे हैव टू एक्सेप्ट इट, वो कौन सी रियलिटी है, सोशल लाइफ, जिस सोसाइटी में पेशेंट जीता है, लव रिलेशनशिप एंड मॉरल बिहेवियर. ये एक्चुअली कभी भी गिवन नहीं होती, इट इज ऑलवेज टेकन. मींस ये हमेशा इंडिविजुअल जिस सोसाइटी में रहता है उस पर्टिकुलर सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होकर उस रियलिटी को वो क्रिएट करता है. फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन लिविंग इन अ रूरल इंडियन कम्युनिटी, उसके लिए जो रियलिटी का एस्पेक्ट होगा वो एक वेस्टर्न अर्बन कम्युनिटी की रियलिटी से बिल्कुल अलग होगा. नाउ अगर आर्ट इल्यूजन को कंस्टिट्यूट करती है तो जितनी भी ईगो एक्टिविटीज हैं, वो रेशनल एक्टिविटीज, वो मॉरल चॉइसेस जिसके माध्यम से, जिसके मीडियम से एक ह्यूमन बीइंग, एक इंडिविजुअल अपने इड को चेक में रखता है, वो भी इल्यूजन है, क्योंकि वो सोशल रियलिटीज क्या हैं, दे आर एक्टिवली क्रिएटेड बाय द माइंड. तो ये फ्राइड एक्चुअली में एक्नॉलेज नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर वो ये एक्नॉलेज करते तो इसका मतलब क्या होता कि आर्ट is equal to illusion, then reality और ego activities is equal to illusion. या तो दोनों को reality माने या दोनों को illusion माने. So it is true that dreams and art they share certain common elements. दोनों में है, क्या common है, unconscious process है. जैसे ड्रीम के अंदर हमें नहीं पता कि सीक्वेंस या पर्टिकुलर ड्रीम क्यों आया, उसी तरह से आर्टिस्ट किस तरह से अपनी आर्ट को क्रिएट करता है, देयर आर सर्टेन अनकॉन्शियस प्रोसेसेस. फिर उसके बाद फैंटेसी तो उसके अंदर है ही, बट इट डज नॉट मीन कि जिस तरह से फ्राइड ड्रीम को टोटल एक एलिमेंट ऑफ फैंटेसी डील करता है, उसी तरह से आर्ट को डील नहीं कर सकते. दे डिफर सिग्निफिकेंटली इन क्रूशियल वेज, जिसकी जो फ्राइड की थियरी एक्सप्लेन नहीं करती है. चार्ल्स लैम ने इस कॉन्टेक्स्ट में की डिफरेंस आइडेंटिफाई कर रहा है कि पॉइट्स अपनी फैंसी को कंट्रोल करते हैं, मतलब दे आर द मास्टर ऑफ देयर फैंसी, वाइल न्यूरोटिक इंडिविजुअल जिसके ड्रीम्स उसके ऊपर हावी होते हैं, ही इज दैट पर्सन, दैट पेशेंट इज कंट्रोल्ड बाय their fantasy. So the position of the master is reverse. ड्रीम के अंदर जो मास्टर है वो ड्रीम है, न्यूरोटिक पेशेंट उसके अंडर कंट्रोल है, जबकि एक आर्टिस्ट का विजन, उसकी फैंटेसी उसके कंट्रोल में है. ठीक इसी तरह से याक्वस बाजुन जो एक फ्रेंच कल्चरल हिस्टोरियन है, उन्होंने भी ये नोट करा कि आर्ट जो है लीड अस बैक टू आउटर रियलिटी. आर्ट एक बार जरूर आपको इमेजिनेशन की फ्लाइट पर लेकर जाती है, बट इट कैन आल्सो ब्रिंग यू बैक टू आउटर रियलिटी बाय टेकिंग केयरफुल अकाउंट ऑफ इट. लेकिन ड्रीम्स जो हैं वो एक्सटर्नल रियलिटी से बिल्कुल डिटैच होते हैं, अलग होते हैं. तो इस कारण फ्रायड ने एक फॉल्स एनालॉजी डिफाइन करी आर्ट और ड्रीमिंग के अंदर, बिकॉज ही मिस्ड कि आर्ट हैज बेसिक कनेक्शन टू रियलिटी. उनका जो एजम्पशन था कि आर्ट केवल एक हेडोनिस्टिक प्लेजर एंड एस्केप ही प्रोवाइड कराती है, उसने वो ये समझने में एक्चुअली में अनेबल रहे कि आर्ट has a deeper role in helping people understand and engage with world more fully. Art is not just a pleasure giving activity, it enables a person, an artist, to understand how the world works. तो ये भी ध्यान में रखते हुए ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्रायड रिकॉग्नाइज सेवरल इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ आर्ट. फर्स्ट, art provides emotional release and psychological relief.
आर्ट एक कैथार्टिक जो फंक्शन एरिस्टोटल के अंदर पढ़ा है, इट अलाउज पीपल टू एक्सपीरियंस फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड डायरेक्टली इन रियलिटी। फैंटेसी के अंदर जाना और वो चीजें कर पाना जो हम रियलिटी में नहीं कर सकते। एंड आल्सो हेल्प्स ट्रांसमिट एंड स्ट्रेंथन इंपॉर्टेंट सोशल एंड मॉरल वैल्यूज। ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है आर्ट का जो फ्राइड ने लेटर रिकॉग्नाइज करा कि सोशल और मॉरल वैल्यूज को भी स्ट्रेंथ देने के अंदर आर्ट का जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये था इस लॉन्ग एसे का सेकेंड पार्ट। पार्ट थर्ड जो बिगिन है, पार्ट थर्ड जो है इस एसे का, in this essay we will see how Freud himself and Trilling shows the limitations of the psychoanalytic literary criticism। मतलब इस पॉइंट में हम देखेंगे, ये देख लिया कि किस तरह से फ्रायड की एक तो एक्चुअली गलत एनालॉजी है जिसके अंदर he thinks that both literature and dreams have the same mechanism। पहली बात तो यहां पर ये डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ट्रिलिंग एडमिट्स दैट ही हिमसेल्फ इनिशियली सजेस्टेड, ऐसे की बिगनिंग के अंदर ट्रिलिंग ने खुद ये सजेस्ट करा था कि फ्राइड के आइडिया कुड बी हेल्पफुल इन इल्यूमिनेटिंग आर्ट। मतलब आर्ट का जो मीनिंग है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको क्लियर करने में फ्राइड के आइडियाज हेल्पफुल रहेंगे। और अब एक्चुअली में दो पार्ट के अंदर उन्होंने क्या शो करा है कि फ्राइड का जो कॉन्सेप्शन ऑफ आर्ट है वो इनएडुकेट है। जस्ट अभी हमने देखा कि वो ये मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती है, या जिस वे के अंदर एक साइकाइट्रिस्ट एक पेशेंट के माइंड को स्टडी करता है, सिमिलर वे के अंदर लिटरेचर को भी एनालिसिस किया जा सकता है। बट फ्राइड हिमसेल्फ was conscious that psychoanalysis का जो है वो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, लिमिटेड उसका व्यू पॉइंट होता है। और फ्राइड was not very happy, very much ready to encroach upon the artist's creative independence, because वो नहीं चाहते थे कि जो टोटली साइकोलॉजिकल थियरीज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बेस पर किसी लिटरेरी वर्क, किसी आर्टिस्टिक वर्क को वैल्यूएट किया जाए या फिर उसको इंटरप्रेट किया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर फ्राइड ने लियोनार्डो दा विंची का पोर्ट्रेट मैडोना ऑफ द रॉक्स देखा और उसको अपने साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के हिसाब से इंटरप्रेट करा कि व्हाट मे बी द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस पोर्ट्रेट, तो हो सकता है उनके व्यू पॉइंट्स जो रीडर्स हैं वो पेंटिंग को जो जिस ढंग से देखते हैं उसका वो चेंज कर दें। ही डिडंट वांट, वो नहीं चाहते थे कि रीडर्स उस पेंटिंग को केवल एक एक्सप्रेशन ऑफ होमोसेक्सुअल फीलिंग्स के रूप में देखें, उसकी रिलीजियस अंडरटोन्स, उसकी आर्टिस्टिक जो क्वालिटीज हैं उसको रीडर जो है साइकोलॉजिकल प्रोसेस के बाद इग्नोर करें। फ्राइड हिमसेल्फ वाज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस प्रोसेस। सो दैट इज व्हाई फ्राइड कॉशंस, वो वार्न करते हैं उन लेमैन को, उन बेसिक रीडर्स को कि दे शुड नॉट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम साइको एनालिटिक आर्ट एनालिसिस। उसका वो खुद ये कहते हैं कि इसका कोई बहुत ज्यादा आप इस पर डिपेंड नहीं रहे, बिकॉज जो साइको एनालिटिक प्रोसेस है ये आर्टिस्टिक प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, उसको ये डिसाइफर नहीं कर सकती। एंड अदर थिंग आल्सो कि एक लिटरेचर को जो फॉर्म किया जाता है उसके अंदर देयर आर सो मेनी फैक्टर्स लाइक tone, style, structure, technique, all of these elements contribute to the beauty of the literature, to the aesthetics of the literature। लेकिन फ्राइड ये कहते हैं कि I am interested only in content and meaning। So एक बहुत बड़ा चंक, एक बहुत बड़ा पोर्शन जो लिटरेचर को स्टडी करने के लिए जरूरी है, फ्राइड अपने आप को उससे क्या रखते हैं, दूर रखते हैं। That is why it is also a limitation। स्टिल फ्राइड को यह भी पता था कि विद द हेल्प ऑफ साइकोएनालिसिस
it provides certain more tools to understand literature. For example, एक वर्क का केवल सरफेस नहीं, इनर और हिडन मीनिंग क्या है, और दूसरा एक आर्टिस्ट जो है उसका एज अ पर्सन टेम्परामेंट और साइकोलॉजी जो था उसने किस तरह से कंट्रीब्यूट करा उस वर्क को कंपोज करने में, उस वर्क को लिखने में, इसमें भी साइको एनालिसिस हेल्प करता है। नाउ एक वो एग्जाम्पल देते हैं लियोनेल ट्रिलिंग, साइको एनालिटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म का। डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स जो एक फेमस शेक्सपियरियन क्रिटिक हुए हैं, और जब उन्होंने हैमलेट प्ले को देखा और इसकी यूनिवर्सल अपील और इसके जो इसके अंदर एम्बिग्विटी है, तो ही ट्राइड टू सॉल्व टू प्रॉब्लम्स और टू मिस्ट्रीज रिलेटेड विद दिस प्ले। पहला है द डिले मिस्ट्री। मैनी क्रिटिक्स फ्रॉम various we can say ages have tried to understand what may be the reason behind Hamlet's delay in taking revenge for his father's murder. Though we know that he is quite resolved, उसके मन में इच्छा है कि वो अपने फादर के मर्डर का बदला ले, then why he hesitates or why he put this thing on hold? एक तो ये, और दूसरा the appeal mystery, which means that what is the reason behind play's magical appeal and enduring charm after 300-400 years of composing this play. This play is still very popular and also greatly appreciated by the critics. Also अर्नेस्ट जोन्स ने इन दोनों क्वेश्चंस को कोशिश करी सॉल्व करने के लिए। तो पहले के लिए डिले मिस्ट्री के लिए उन्होंने साइको एनालिसिस का हेल्प लेते हुए कंक्लूजन निकाला कि हैमलेट कैन नॉट एक्ट। Why? Because of the unconscious guilt and due to the attachment of to his mother, जिसको फ्राइड ने साइको एनालिसिस के अंदर Oedipus complex कहा था। when a person is excessively obsessed towards or harbors certain sexual feelings for the opposite sex parent, तो उन्होंने कहा this may be the reason। फ्राइड ने भी इसी तरह से किंग लियर को एनालाइज करा, और जो किंग लियर की 3 डॉटर्स हैं उनको 3 माइथोलॉजिकल फिगर से कनेक्ट करा एक साइकोलॉजिकल रीडिंग के अंदर। पहला द नॉर्स, दैट इज नॉर्स जो स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी है उसके अंदर गॉडेस ऑफ फेट। द फेट्स जो ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर गॉडेस ऑफ फेट है हु कंट्रोल्ड ह्यूमन डेस्टिनी, एंड द ग्रेसेस जो ग्रीक गॉडेसेस हैं ब्यूटी और चार्म की। उसके बाद फ्राइड ने कहा कि ये जो माइथोलॉजिकल फिगर्स हैं दे आर सिमिलर टू लियर्स 3 डॉटर, और जो किंग लियर का प्रॉब्लम है, जो सफरिंग है, इट मे बी द कॉज बिहाइंड दी सफरिंग इज एन ओल्ड मैन्स। तो यहां लियर इंडिविजुअल नहीं, एक साइको एनालिटिक रीडिंग करी है कि ही इज लाइक दैट ओल्ड पर्सन who is not ready to give up the love he receives and accept that he is approaching towards death। तो एक जो क्लासिकल डिलेमा होता है उसको लियर जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ये फ्राइड का इंटरप्रिटेशन था किंग लियर को लेकर। नाउ ट्रिलिंग ये पॉइंट आउट करते हैं कि हालांकि जो फ्राइड का किंग लियर का इंटरप्रिटेशन है, इट इज वेरी एक्साइटिंग, थॉट प्रोवोकिंग, quite innovative, but at the same time he says that we cannot say it is the meaning of the play, just like Oedipus motive is not the meaning of the Hamlet. It can be one of the interpretation, it can be one of the explanation, but it cannot be we cannot call the absolute meaning। ये हम नहीं इसके अंदर कह सकते हैं। एक्चुअली में ट्रिलिंग एक टिपिकल 20th सेंचुरी क्रिटिक की तरह ये मानकर चलते हैं दैट नो वर्क ऑफ आर्ट हैज वन सिंगल डेफिनेट मीनिंग, और जो मीनिंग को डिसाइड करने वाले फैक्टर हैं वो पर्टिकुलर पर्सनल रीडिंग है, हिस्टोरिकल ऑडियंस कॉन्टेक्स्ट है, जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर उस वर्क को एप्रिशिएट किया जा रहा है, एंड केवल ऑथर की इंटेंशन को वो भी साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करने से हम मीनिंग तक नहीं पहुंच सकते। इसके लिए ट्रिलिंग एक एनालॉजी का यूज करते हैं कि इंपैक्ट ऑफ ए वॉल्केनिक इरप्शन, एक ज्वालामुखी फटता है, इसका प्रभाव क्या होगा।
तो ज्वालामुखी इज लाइक द ऑथर, द राइटर, और इरप्शन हो गया उसका क्रिएटिव फोर्स। लेकिन इसके इंपैक्ट का असर देखने के लिए यह भी देखना पड़ेगा जिस आइलैंड पर वॉल्केनो सिचुएटेड है वो इनहेबिटेड, उस पर लोग हैं, तो उस पर उसका जो इंपैक्ट होगा वो बहुत अलग होगा। वो एक केओस, वो एक हैवॉक, वो एक पैनिक क्रिएट करेगा। लेकिन अगर वो किसी डेजर्टेड आइलैंड पर सिचुएटेड है, nobody will notice it, it will be just one of the things that happens. So एक लिटरेरी वर्क का मीनिंग भी डिपेंड्स अपॉन द टेक्स्ट एंड द रीडर्स। अगर रीडर्स उस टेक्स्ट को कहां पर, किस सिचुएशन में, किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, और इसके लिए एक्चुअली क्या करते हैं, ट्रिलिंग शो करते हैं कि हैमलेट के बारे में अर्नेस्ट जोन्स के जो आइडियाज थे वो किस तरह से एररनेस थे। वो ये पॉइंट आउट करते हैं, ये माना गया है कि हैमलेट की टाइमलेस अपील है, बट ही शोज दैट इट वाज नॉट ऑलवेज सो पॉपुलर। देयर वर टाइम्स जब इट वाज लेस पॉपुलर ड्यूरिंग सर्टेन हिस्टोरिकल पीरियड्स। साथ ही वो ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि जो फ्रेंच थिएटर गोइंग पर्सन्स हैं, जो फ्रेंच थिएटर लवर्स हैं, दे हैव नेवर वार्मली or we can say very enthusiastically welcomed Hamlet. They were rather indifferent to Hamlet's magical appeal. फिर उसके साथ ही वो ये पॉइंट करते हैं कि अगर ये इडिपल कॉम्प्लेक्स ही रीजन था हैमलेट के मोटिव्स को डिले करने के लिए, दिस शुड नॉट बी केस। सभी एजेस के, सभी कंट्रीज के लोगों का सिमिलर रिसेप्शन रहना चाहिए था, जैसा नहीं है, जिससे प्रूव करता है खाली ये पर्टिकुलर मीनिंग नहीं हो सकता। और अगर बात करें हम ऑथर की इंटेंशन की, नेचुरली इफ वी नो अबाउट आर्टिस्ट कॉन्शियस लाइफ, तो वो हमारे को एनरिच कर सकती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकती है उस वर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए। और साथ ही में हम उनके अनकॉन्शियस जो इंटेंशंस हैं वो समझने के लिए, हम हर जना फ्राइड की तरह इक्विप्ड नहीं होता है इस स्पेशल नॉलेज के लिए, तो इट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दूज राइटर्स हु आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड, द डेड आर्टिस्ट, उनकी अनकॉन्शियस एसोसिएशन के बारे में जानने के लिए हमारे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है। दैट इज व्हाई अप्लाइंग साइको एनालिटिक टेक्निक्स टू देयर वर्क, वो क्या हो जाता है, एक उसकी यूजफुलनेस बहुत लिमिटेड रह जाती है। नाउ ये चीज क्लियर करने के बाद, इस वजह से ट्रिलिंग जो है वो साइको एनालिटिक मेथड को क्रिटिसाइज करता है। जब ये साइको एनालिसिस मेथड एक ऑथर की साइकोलॉजिकल टेम्परामेंट को सॉल्व करने का कोशिश करता है कि लिटरेचर के अंदर कोई मिस्ट्री है, जैसे हैमलेट के अंदर अगर मिस्ट्री है तो उसके पीछे शेक्सपियर के पर्टिकुलर लाइफ के अंदर कोई ऐसा इंसिडेंट रहा होगा, कोई टेम्परामेंट हुआ होगा। जैसे शेक्सपियरियन सॉनेट्स को हम जनरली उनके पर्सनल लाइफ से अटैच करके देखते हैं, क्योंकि देखिए ट्रिलिंग क्या शो करते हैं कि सबसे पहले हम वर्क को पढ़ते हैं और उस वर्क के द्वारा हम एक राइटर की साइकोलॉजिकल टेम्परामेंट को समझने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद उसके साइकोलॉजिकल टेम्परामेंट के बारे में किसी कंक्लूजन पर पहुंचकर उस कंक्लूजन को हम उस वर्क पर अप्लाई करते हैं कि उस वर्क में उस टेम्परामेंट का क्या मीनिंग है, और फिर वापस से जो मीनिंग निकला उस मीनिंग से राइटर को, जो ऑथर का माइंड प्रोसेस है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इट इज ए सर्कुलर आर्ग्यूमेंट। मुर्गी पहले या अंडा, तो एक सर्किल में घूमता रहता है, वर्क से राइटर, राइटर से वर्क, वर्क से राइटर, जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। एक और एग्जांपल से वो शो करते हैं कि देयर आर रेफरेंसेस जिसके अंदर फ्राइड ने खुद ये एक्सेप्ट करा है कि देयर वाज नॉट, जो जनरली हम मानकर चलते हैं शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के बारे में, दैट ही बिलोंग टू स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, बट देयर आर अदर थियरीज, जो कुछ थियरी सजेस्ट करती हैं कि शेक्सपियर वाज नॉट दैट पर्सन, दैट नोवाइस एक्टर, बट रादर द अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड। अगर ये बात मान ली जाए तो उसके बाद डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स ने एक जो साइकोलॉजिकल रीडिंग करी थी कि शेक्सपियर के फादर जो थे, उनकी डेथ ने हैमलेट को लिखने के लिए शेक्सपियर को इंस्पायर करा था। अगर शेक्सपियर वो पर्सन ही नहीं है, अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड है, तो डेफिनेटली ये व्यू रिजेक्ट होता है। दिस शोज दैट लिमिट
लिमिटेड उसका यूजफुलनेस है इस साइकोलॉजिकल एनालिसिस का। इसके साथ ही जैसे डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स ने यह माना कि हैमलेट जो है वो शेक्सपियर का चीफ मास्टरपीस है और इसका जो बाकी शेक्सपियर के वर्क्स है उनसे जो लेवल है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन वापस से ट्रिलिंग ये मानते हैं कि ये जो ओपिनियन है ये प्योरली सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव लिटरेरी एनालिसिस नहीं है। तो इन सारे पॉइंट्स के द्वारा ट्रिलिंग ये शो करने की कोशिश करते हैं कि साइको एनालिटिक एनालिसिस का एक लिटरेरी इंटरप्रिटेशन पर बहुत लिमिटेड रोल रहता है। लेकिन इसके साथ ही ट्रिलिंग वापस से अपने व्यू को बैलेंस करते हुए ये बोलते हैं कि मैं साइको एनालिसिस को रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फ्राइडन कॉन्सेप्ट्स के कारण एटलीस्ट एक हमें एडिशनल बेनिफिट मिला है किसी लिटरेचर को इंटरप्रेट करने में। पहला, फ्राइड ने हमें ये मौका दिया या ये हमें अलाउ करा दैट वी कैन अंडरस्टैंड द रिच एम्बिग्विटी इन लिटरेरी वर्क्स, कि किसी तरह से जो वर्क का सरफेस मीनिंग है दैट इज नॉट द फाइनल मीनिंग एंड देयर इज सम इंटरप्ले बिटवीन द एपेरेंट जो सरफेस पर है एंड लेटेंट जो हिडन मीनिंग है उसको समझने में। इस तरह से इसका एक बेटर एग्जांपल ट्रिलिंग देते हैं डॉक्टर फ्रांस अलेक्जेंडर, अनदर क्रिटिक, जिन्होंने शेक्सपियर के हेनरी फोर्थ प्लेस के ऊपर जो 2 पार्ट है उनके ऊपर स्टडी करी और रादर देन ट्राइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन टू द मिस्ट्रीज उन्होंने सिर्फ इसके एक और मीनिंग पर इल्यूमिनेट करा, उसको साइको एनालिसिस रीडिंग से शो करा। तो उनके अकॉर्डिंग, डॉक्टर फ्रेंच के अकॉर्डिंग, जो सेंट्रल कैरेक्टर है प्रिंस हॉल, उसका जो डेवलपमेंट है इट इज लाइक द डेवलपमेंट ऑफ ईगो टू अचीव साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी, जिसमें जो ईगो की प्रोसेस है वो इड को किसी तरह से कंट्रोल करती है। तो यहां पर अलेक्जेंडर किसी एक सिंगल मोटिव जैसे इडिपल कॉम्प्लेक्स इस पर जाने की बजाय या एक्सप्लेन करने की बजाय इस मोटिव से सारे प्ले को ये शो करते हैं कि इट इज comparable, it is equal to the an individual's effort to make his id under control of that person's ego। और इसी तरह से ट्रिलिंग आर्ग्यू करते हैं कि हैमलेट शेक्सपियर की पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल स्टेट का प्रोडक्ट नहीं है, इट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ हिज थॉट, इट इज वन ऑफ द वे जिसके थ्रू शेक्सपियर ह्यूमन नेचर के कॉम्प्लेक्स आइडियाज को प्रेजेंट करता है। तो हैमलेट बिकम काइंड ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ व्हीकल जिसके मीडियम से शेक्सपियर शो करते हैं हाउ डिफिकल्ट एंड हाउ एम्बिगुअस इट इज टू अंडरस्टैंड the way a human behaves in particular situations। इसीलिए ट्रिलिंग ये भी नोट करते हैं कि दैट इडिपल जो मोटिव है वो केवल हैमलेट में नहीं, कॉरियोलेनस जो लेटर प्ले है शेक्सपियर का एक और रोमन ट्रेजेडी है, it also deals with the Oedipal theme, a son's relationship to with his mother। लेकिन जो आर्टिस्टिक क्रिएशन है और जो उसका रिएक्शन रेस्पॉन्स है वो बिल्कुल अलग अलग है। हैमलेट एक बहुत डिफरेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और कॉरियोलिनस एक बिल्कुल डिफरेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इससे शो होता है कि साइकोलॉजिकल मोटिव जो है वो एक लिटरेरी वर्क के इंपैक्ट और मीनिंग को अकेले ही डील नहीं कर सकते। और दीज सेम साइकोलॉजिकल पैटर्न एक बिल्कुल डिफरेंट आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस को क्रिएट कर सकता है, जैसे हम हैमलेट और कोरियोलिनस के पर्टिकुलर केसेस में दे सकते हैं। और इससे प्रूव होता है कि साइकोलॉजिकल कंटेंट इज नॉट द सोल डिटर्मिनेंट, केवल एकमात्र डिटर्मिनेंट नहीं है जो आर्टिस्टिक मीनिंग को क्रिएट करता है। सो दिस वाज द थर्ड पार्ट ऑफ द एसे जिसके अंदर ट्रिलिंग जो है लिटरेरी एनालिसिस पर साइकोलॉजिकल जो वे होता है उसके लिमिटेशन को शो करते हैं। तो नाउ वी कम टू द फाइनल पार्ट फोर्थ ऑफ दिस लॉन्ग एनालिटिकल एसे। और इस पार्ट के अंदर ट्रिलिंग टॉक्स अबाउट द ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रायड इन अंडरस्टैंडिंग आर्ट, आर्ट को समझने में क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। वी हैव सीन दैट किस तरह से जो साइको एनालिटिक थियरी है इट हैज लिमिटेड स्कोप,
इन और जो फ्राइड के व्यूज का रोल है वो उसके अंदर देयर आर सिग्निफिकेंट फ्लॉज आल्सो, बट द कंट्रीब्यूशन इट कैन नॉट बी डिनाइड, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, फ्राइड बेसिकली रिप्रेजेंटेड अ वेरी रेवोल्यूशनरी आइडिया, एक ऐसा आइडिया जिसने लिटरेचर की अंडरस्टैंडिंग को रेडिकली चेंज कर दिया। वो आइडिया क्या था? माइंड इज नेचुरली इंक्लाइंड टू क्रिएट पोइट्री। ये एक बड़ा ऐसा हम कह सकते हैं आइडिया था विच चेंज द ट्रेडिशनल थिंकिंग अबाउट माइंड, बिकॉज फ्रायड जो है वो अनकॉन्शियस माइंड को, पार्ट को एक पोइट्री मेकिंग ऑर्गन मान के चलते हैं, जो बेसिकली चैलेंज है, जो एक तरह का सीधा इस बात का रिफ्यूटेशन है कि पोइट्री, जनरली जो ग्रेट फिलोसोफर्स भी माना करते थे कि पोइट्री इज डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल मेंटल फंक्शन। इसका मतलब यह है कि फ्राइड से पहले फिलोसोफर्स एंड साइंटिस्ट दे थॉट दैट rational thinking is the normal mental function and imaginative and poetry thinking is some kind of deviation. लेकिन फ्राइड ने कहा no, naturally mind is a poetry making organ. Now Freud also recognizes that poetry is not just a time pass, an artistic activity, but rather it is a pioneering method of thought. एक नया तरीका है, it is an integral part of how the mind naturally operates, means उसके लिए माइंड को कोई आर्टिफिशियल कोई डिविएशन नहीं, it is one of the ways the mind functions. And again it is in contrast with the traditional distinctions between रेशनल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग। रेशनल थिंकिंग जिसको सपोर्ट किया जाता है, जिसको नॉर्मल, जिसको ऑटोमेटिक माना जाता है, और क्रिएटिव थिंकिंग जिसको मैडनेस के साथ, जिसको डिविएशन के साथ जोड़कर देखा जाता है। फ्राइड ने इस डिस्टिंक्शन को रिजेक्ट कर दिया। नाउ एक और बड़ी मजेदार इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह भी देखने में है कि फ्राइड ने जब पोइट्री को क्रिटिसाइज करा जिन ग्राउंड्स के ऊपर, उसमें से एक ग्राउंड ये था कि पोइट्री इज अनरिलायबल फॉर अंडरस्टैंडिंग रियलिटी। रियलिटी को समझने के लिए आपको रेशनल थिंकिंग की जरूरत होती है, लेकिन he himself relied heavily on metaphorical language to express his scientific theories. यहां हमें पता चलता है कि साइंटिफिक थियरीज को एक्सप्लेन करने के लिए और डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जिन एनालॉजीज और मेटाफर्स का यूज किया जाता है, दे कम फ्रॉम द रियलम ऑफ पोइट्री, which shows yes, poetry can also be a vehicle for understanding and expressing reality. Now it shows that even the most scientific thinking requires imaginative metaphorical language to communicate complex ideas. इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि आपने बिल्कुल रेशनल साइंटिफिक डिटैच थिंकिंग के साथ एक कॉन्सेप्ट पर काम करा, नाउ यू वांट टू propound the theory, to explain the theory, to share the knowledge. आपको क्या करना पड़ेगा? You have to use the metaphorical, the poetic language. तो ये शो करता है कि पोइट्री की लैंग्वेज इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द साइंटिफिक लैंग्वेज। इस कनेक्शन में ट्रेलिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग बात नोट करते हैं। 18th सेंचुरी फिलोसोफर जाम बातिस्ता विको, इटली के फिलोसोफर थे। इन्होंने ये मानकर चले थे कि मेटाफोरिकल लैंग्वेज जो थी, इट वाज पार्ट ऑफ आवर अर्ली ह्यूमन इवोल्यूशन, कल्चरल डेवलपमेंट। और जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स इवॉल्व हुए, डेवलप हुए, वैसे वैसे दे बिकम हैवीली डिपेंडेंट अपॉन रेशनल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज। लेकिन फ्राइड ने ये डिस्कवर करा दैट फिगरेटिव थिंकिंग और मेटाफोरिकल लैंग्वेज इट कंटिन्यूज टू ऑपरेट इवन इन साइंटिफिक एंड रेशनल एजेस. So according to Freud, the unconscious mind
ऑपरेट्स विदाउट द लॉजिकल कनेक्शन। देखिए जो कॉन्शियस माइंड है वो चीजों को कनेक्शंस के थ्रू जोड़कर एक बड़े रेशनल, एक बड़े साइंटिफिक वे के अंदर प्रोसेस करता है और एक्सप्रेस करता है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन फ्राइड साथ में ये भी कहते हैं कि जो अनकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर ये लॉजिकल कनेक्टर्स जैसे कंजंक्शंस, बिकॉज, देयरफॉर, बट, ये काम नहीं आते। ये करेक्टराइज करते हैं रेशनल कॉन्शियस थॉट को, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड जो है वो इमेजरी का, वो इस तरह की इमेजरी का यूज करता है जो एब्स्ट्रैक्ट चीजों को कॉन्क्रीट वे में डील करे। वंस अगेन ये इमेजेस का काम हो गया। जो लॉजिकल प्रोपोजिशंस की बजाय विजुअल इमेजेस को प्रेफर करे और जो डायरेक्ट स्टेटमेंट की बजाय सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करे। अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेयर जो माइंड की होती है वो इन तीन चीजों को प्रेफर करता है जो डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है पोएटिक क्रिएटिविटी के लिए। Now, Trilling acknowledges that two crucial elements in Freud's thought, बहुत इंपॉर्टेंट यहां पॉइंट है इस ऐसे का कि फ्राइड के प्रपोज करे हुए दो पॉइंट्स हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट को एनहांस और एनलाइटन करते हैं। फर्स्ट जो था 1920 का जो फ्राइड का एसे था बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल, वेरी पॉपुलर ऐसे। इसके अंदर फ्राइड ने एक बड़ा ही रेवोल्यूशनरी आइडिया इंट्रोड्यूस करा और जो एरिस्टोटल का क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कैथारसिस है, जो क्या आप सभी जानते हैं कैथारसिस इज एक्चुअली द बेनिफिशियल इमोशनल इफेक्ट ऑफ ट्रेजिक ड्रामा ऑन ऑडियंस। एरिस्टोटल वाज परप्लेक्स्ड, व्हाई डू वी विटनेस अ ट्रेजेडी ऑन स्टेज? जब कॉमेडी है तो हम ट्रेजेडी क्यों देखना चाहते हैं? और उसके कंक्लूजन में एरिस्टोटल ने यह शो करा था दैट इट ब्रिंग्स अ काइंड ऑफ इमोशनल रिलीफ, एक बेनिफिट देता है जिसके कारण ऑडियंस लव्स टू वॉच ट्रेजेडीज। फ्राइड की जो अर्ली थियरी थी वो ये मानकर चलती थी कि जितनी भी मेंटल एक्टिविटी है, चाहे वो ड्रीम्स हैं, वो उन सबका जो पर्पस होता है, ऑल मेंटल एक्टिविटीज एम टू डिलीवर प्लेजर, प्लेजर प्रिंसिपल। माइंड का ये ड्राइव के टू सीक प्लेजर एंड टू अवॉइड पेन। वंस अगेन द क्वेश्चन अराइजेस, अगर सब चीजों से प्लेजर ही प्रोवाइड करना है तो फ्राइड ने अपने पेशेंट्स में ऑब्जर्व करा कि दोज हु वर सफरिंग फ्रॉम वार न्यूरोसिस, पोस्ट ट्रॉमेटिक जो सिंड्रोम से सफर कर रहे थे, दे ड्रीम्ड ऑफ डिस्ट्रेसिंग वार टाइम सिचुएशन। नाउ फ्राइड की थियरी के अकॉर्डिंग ड्रीम्स क्या करने चाहिए? अवॉइड पेन एंड सीक प्लेजर। लेकिन ये जो पेशेंट्स थे वो वार टाइम सिचुएशन जो डिस्ट्रेसिंग थी, ट्रॉमेटिक थी, उनको कर रहे थे, तो पेन को अवॉइड तो नहीं कर रहे थे। तो फ्राइड ने नोटिस करा कि ये जो ड्रीम्स थे, ये फ्राइड की जो विश फुलफिलमेंट की थियरी कि हमारी जो अधूरी इच्छाएं होती हैं, हमारे ड्रीम्स, उनको एक्सप्रेस करते हैं पूरा करने के लिए। निश्चित रूप से ट्रॉमेटिक जो विजन्स है वो नहीं करते। रीविजिटेड ट्रॉमेटिक सिचुएशन विद पेनफुल लिटरलनेस, once again it is against his theories and seemed impossible to interpret as pleasure seeking, क्योंकि इतने ट्रॉमेटिक थे ये विजन्स, तो ये तो मान ही नहीं सकते कि ये प्लेजर सीकिंग का एक कोई व्हीकल था। इसके कारण फ्राइड ने एक नया प्रिंसिपल बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल प्रपोज करा, रिपीटिशन कंपल्शन, विच इज अ मेंटल प्रोसेस जो प्लेजर प्रिंसिपल के बियॉन्ड अपना रोल प्ले करती है और जिसके द्वारा एक्चुअली क्या होती है, वो एक पेशेंट के अंदर, वो एक जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको साइकोलॉजिकली रेडी करती है कि मेंटल कंट्रोल वो वापस से ट्रॉमा के ऊपर अचीव कर ले। जब वो बार बार उस ट्रॉमेटिक इवेंट को रिकॉल करता है, रीविजिट करता है, उसका जो इफेक्ट है, उसका जो इंपैक्ट है, ग्रेजुअली कम होता चला जाता है एंड फाइनली अल्टीमेटली इट वाइप्स अवे फ्रॉम द सबकॉन्शियस। तो दिस इज रिपीटिशन कंपल्शन, जानबूझकर ड्रीम्स के मीडियम से एक पेशेंट उनको रिविजिट करता है।
सेम एनालॉजी वी कैन फाइंड इन चिल्ड्रन प्ले, जहां पर बच्चे रिपीटेडली इनेक्ट करते हैं अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस को विश फुलफिलमेंट के बजाय, जिसके द्वारा वो क्या करना चाहते हैं, अपने उन बुरे एक्सपीरियंस को भूलना चाहते हैं। और बिल्कुल सेम यही थियरी ट्रेजिक ड्रामा में पाई जाती है, जिसमें जो स्पेक्टेटर्स हैं वो ट्रेजेडी को इनेक्ट होते हुए देखते हैं, क्योंकि वो बार बार उन सीन्स को देखना उनके खुद के ट्रॉमा को रिड्यूस करता चला जाता है। बट स्टिल फ्राइड वाज अनेबल टू कंप्लीटली एक्सप्लेन व्हाट अट्रैक्ट्स पीपल टू ट्रेजेडी, व्हाई दे वांट टू विटनेस अ ट्रेजेडी ऑन स्टेज। अब फ्राइड इसको और टेक्निकली आगे बढ़ाता है कि ये जो रिपीटिशन कंपल्शन है, इसको वो ट्रेजेडी का मिथ्रीडेटिक फंक्शन बोलते हैं। ये मिथ्रीडेटिक वर्ड जो है वो एक माइथोलॉजिकल किंग मिथ्रीडेट्स से आया है। मिथ्रीडेट्स के बारे में ये कहा जाता था कि डेली वो एक पॉइजन की स्मॉल डोजेस लिया करता था डेली, और धीरे धीरे वो बॉडी के अंदर जाकर उसने अपने आप को पॉइजन से टोटली इम्यून कर लिया, पॉइजन का असर उस पर होना खत्म हो गया। तो इसका मतलब ट्रेजेडी को जब हम डेली स्मॉल डोजेस के अंदर वॉच करते हैं, धीरे धीरे हम रियलिटी के अंदर उस ट्रेजेडी के प्रति तटस्थ हो जाते हैं, इम्यून हो जाते हैं। जो रियल लाइफ में ग्रेटर सफरिंग आने वाली होती हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर उनके लिए एक्सेप्टेंस आ जाती है। जो प्लेजर हम डिराइव करते हैं ट्रेजेडी से, वो एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और एम्बिगुअस है। स्टेज पर किसी ट्रेजेडी को देखना और हैप्पी फील करना, इट सीम्स रादर वेरी एम्बिगुअस एंड कॉम्प्लिकेटेड थीम। एंड समटाइम्स ट्रेजेडी क्या करती है, जो टेरर के सीन्स होते हैं, ट्रेजिक सीन्स होते हैं, उनको ब्यूटीफुल लैंग्वेज से मास्क कर देती है। जो स्पेक्टेटर का पूरा फोकस होता है वो उस ब्यूटीफुल इमेजरी पर जाता है रादर देन रिजॉल्विंग इन। जैसे कि वो एग्जांपल देता है इडिपस का, जब डिस्कवरी होती है अपने क्राइम्स की कि किस तरह से उसने इंसेस्ट कमिट करा है, तो वो लैंग्वेज जो यूज की गई है वो उस जो ग्रेविटी ऑफ द क्राइम है उससे हमारा ध्यान हटाकर उस पोएटिक लैंग्वेज पर ले जाता है। द रियलिटी प्रिंसिपल मतलब to accept life as it is actually rather than wish fulfillment, and the death instinct means which to think about that death is inevitable। ये दोनों चीजें फ्राइड का जो ग्रिम लेकिन पोइटिक व्यू है, क्योंकि पोइट्री में भी यही चीज बताई जाती है, खासकर जो ग्रीक ड्रामा और शेक्सपियर का ट्रेजिक रियलिज्म है, या बाद में हम देखें टॉमस हार्डी का जो टीना फैक्टर है, दैट देयर इज नो अल्टरनेटिव पेन, तो मिलकर रहेगा। इट इज क्वाइट akin, quite similar to that principle. And like every other great critic of human nature, ग्रीक रोमन टाइम से लेकर मॉडर्न फिलोसोफर्स तक, फ्राइड भी क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि ह्यूमन प्राइड, hubris is the ultimate cause of human suffering. We fall when we become proud. तो ये आइडियाज आर क्वाइट सिमिलर टू साइंटिस्ट लाइक कॉपरनिकस, जिन्होंने ये प्रूव करा था कि इट इज द वर्ल्ड इज नॉट सेंटर्ड अराउंड अर्थ, इट इज हेलियोसेंट्रिक, मतलब सन सेंटर है और अर्थ इज जस्ट अ प्लैनेट। तो एक घमंड ये टूटा, हम मानकर चलते थे अर्थ इज द सेंटर। देन डार्विन, जिसने ये शो करा कि वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स इन अवर प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। ये दोनों जब साइंटिफिक थियरीज प्रूव हो गई, तो ह्यूमन प्राइड को, जो अपने आप को प्राइम एंड क्रक्स मान के चलता है सिविलाइजेशन का, अर्थ को सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट मानकर चलता है, वो और भी मुश्किल होता चला जाता है। तो फ्राइड की थियरीज, या फिर चाहे कॉपरनिकस की थियरीज हो, चाहे डार्विन की थियरीज हो, इनसे एक बार तो ऐसा लगता है कि ह्यूमन डिग्निटी को वो डिमिनिश कर रही हो, लेकिन ट्रिलिंग आर्ग्यू करता है कि जो फ्राइडियन ह्यूमन है, जो फ्राइड के अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग है, वो मोर डिग्निफाइड है रादर देन अदर मॉडर्न सिस्टम्स के अंदर, इकोनॉमिक्स में या फिर डार्विन के इवोल्यूशन थियरी के अंदर। जैसे इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म मार्क्स का है, वो ये कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स आर टोटली डिटरमाइंड बाय इकोनॉमिक क्लास एंड मटेरियल कंडीशन। वी आर लाइक पपेट्स इन द स्टेज ऑफ दिस वर्ल्ड।
इसी तरह से सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, डार्विन ये कहता है कि बायोलॉजिकल सर्वाइवल नीड्स तो जो होती हैं वो डिफाइन करती हैं ह्यूमन बींग्स को। सोशल कंडीशनिंग थियरी क्या कहती है कि ह्यूमंस आर शेप्ड, देयर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस। इनसे थोड़ा हटकर जो फ्राइड का ह्यूमन बीइंग है, that human being is far more dignified because he says that humans are inextricable, जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, अनटेंगल नहीं किया जा सकता, कल्चर एंड बायोलॉजी। एक तरफ बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है तो दूसरी तरफ कल्चरल इम्प्रिंट्स हैं। एंड सिंपल फार्मूला जैसे मार्क्स ने या डार्विन ने देने की कोशिश करी है नहीं हो सकता, बिकॉज अकॉर्डिंग टू फ्राइड humans have a kind of hell within. What is this hell? Internal conflict between civilization जो ईगो का पार्ट करता है एंड डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस जो इड पार करता है, इन दोनों के बीच में एक टग ऑफ वार कंटिन्यूस चलती रहती है। दैट इज अ काइंड ऑफ हेल विद इन, उसी चीज को कहा गया है। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो लगातार हर ह्यूमन बींग्स अपने सबकॉन्शियस और कॉन्शियस में इंटरप्ले करता है, वो ह्यूमन बींग्स को हीरोइक बनाता है रादर देन pathetic. Like heroes in Greek tragedies, human achieves nobility not through perfection but through their ongoing struggle against those forces which they neither can see nor they can fully conquer. Now ये चीज मानने के बाद कि ह्यूमन बींग्स के अंदर एक इंटरनल हेल है, इसके बाद भी फ्राइड बिलीव करता है कि बेसिकली वी आर क्रिएचर्स ऑफ लव. Now this is a great we can say mark of difference between Freud and other psychologist theorists like Alfred Adler, who originally was a follower of Freud but later broke away from him and developed his own psychological system. Now according to Adler, there is will to power in human beings, means they are always aggressive to get more and more power, and he ignores the power of love, the role of love played in human life. जबकि फ्राइड ये मानकर चलते हैं कि we are basically creatures of love. So Freud's only desire for humanity क्या है वो? It should be authentically human, means ना तो आइडियलिस्टिकली परफेक्ट जिसके अंदर ईगो का टोटल कंट्रोल हो इट के ऊपर, नॉर सिनिकली रिड्यूस टू मियर बायोलॉजिकल ड्राइव्स जिसके अंदर इट पूरी तरह से कंट्रोल करे ईगो को, बट रादर ऑन गोइंग साइट ऑफ स्ट्रगल जहां पर ईगो और इड एक दूसरे के साथ कभी एक का पलड़ा भारी होता है कभी दूसरे का भारी होता है. Now basically फ्राइड का जो साइंटिफिक वर्क है it was devoted to understand human beings as complex being, not simple formulaic beings capable of both love and conflict. फ्राइड के जो पोएटिक प्रिंसिपल्स हैं वो क्लासिक ट्रेजिक रियलिज्म जैसे हैं, एक इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क जिसकी वजह से ह्यूमन वर्ल्ड बहुत इजी या सिंपल या वन लीनियर नहीं रहता है, इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स. आर्टिस्ट के लिए एक सिंपल फार्मूला नहीं, देयर आर मोर एवेन्यूज, देयर आर मोर ट्रेसेस टू बी फाउंड. दिस कॉम्प्लेक्स व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर वो आर्टिस्ट को और क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज प्रोवाइड करता है उनकी सिंपलर फिलोसॉफिकल सिस्टम की बजाय. ये एक्चुअली में क्या है, फ्राइड का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जा सकता है. एक्चुअली में जब अपन इसको समअप करें, जो फ्राइड का कंट्रीब्यूशन है अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड आर्ट, इट इज बेसिकली नॉट पर्टिकुलर थियरी अबाउट आर्ट बट इन हिज रिकॉग्निशन. कौन सा? कि माइंड इज फंडामेंटली पोएटिक in its natural operation, so the distinction is false between rational and poetic. Second, figurative thinking continues operating even in rational and scientific ages. It is not like evolution के साथ metaphorical से scientific language पर आ गए. Third, art works naturally because it mirrors fundamental mental process. Once again it means कि आर्ट जो है जैसा हमारा मेंटल प्रोसेस है जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें लगातार स्ट्रगल चलती है वैसा ही है. एंड लास्ट, human complexity, it provides richer material rather than simple formulas for artistic exploration. This is all, my dear friends. It is a long essay
आप बहुत आराम से इसको धीरे धीरे समझिए. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. इट टेल्स अस अबाउट हाउ द correlation between literature and psychological stands. Very soon we will come up with another video. Keep watching, keep supporting. Thank you.